जी, तो आप लोगों में से कौन शेयर करना चाहेगा? और मैं शेयर मैं कर देती यू हूँ। श्योर? जी सिद्दीका। जी सिद्दीका। आई थिंक कोई और पहले बोल रहे थे मुझसे। नहीं, I thought कोई कि और अगर भी सिद्दीक बोल कह रहा था। नौशाबा आप शायद। सदीका, गो अहेड। Okay, thank you. So I think what I think what we all were trying to figure out first was what exactly we're supposed to do in terms of either listing our roles or how they transfer from being assigned to aspired or acting. So well, I think what most of us ended up doing was just fill out the categories. So Mhm. I'll tell you the one I have the least for. The one I struggled with the most was aspired roles. And I what I understood was it's something that I want based on interest. And the two that I found were one is being a mentor. I aspire to be a mentor to younger immigrants or younger women settling in the society that I live in. And then the other one is it's kind of funny when I read it right now, but I think I aspire to Beautiful be a vision. grandma one day. Tika, can you repeat your last one? So I think I I aspire to be a grandmother one day. ओके, Mhm. माशाल्लाह। Right. हम्म। इंशाल्लाह। सिद्दीका, कॉलम 1 और 2 के बारे में आप क्या कहेंगी? फर्स्ट और सेकंड रोल्स के ऊपर। So Zarur. So in the assigned roles, हम्म, we basically went through all the relationships that we create. So being a daughter, niece, sister, granddaughter, etc. And we just went, ran through all those. And then besides that, um, I also figured that an assigned role is like when you get a job, then you're automatically assigned a colleague. Like you're automatically you choose to take the job or not. So right. So being an employee may or may not be assigned because you do have a choice to be an employee in a हम्म, company, but then you necessarily don't have a choice to be a team member or a colleague. And the other one that I also had is to be a neighbor. So you have the choice of living somewhere, but when you do live somewhere, you're automatically assigned a role of a neighbor. And for the acting role, I have three. To be a team leader. So these are true for me, for example. I'm it is my current phase of life that I'm going through. Also, at the moment right now, I have my husband's cousin who's staying with us right now for a temporary amount of time, and I'm acting as his sister. I'm acting as his host, um, and I'm helping him, settle in this new country. And the third thing I have is my acting role is I volunteer at Al Maudid, um, giving free English communication lessons. So that's something that I'm investing my effort and time in by choice, of course, for all of them. राइट। सही। आप इन तीनों इस एक्टिविटी करने के ऊपर आप क्या समझती हैं कि कुछ आपको ये लगा कि ऑल ऑफ दीज रोल्स आर अलाइंड, या कुछ इसमें कुछ मिसिंग है, या कुछ Um, नहीं, मिसिंग नहीं है, तकरीबन है सारे रोल। और जैसे कि हमने आपस में बात की तो हमें एक दो रोल मजीद मिले। जैसे मुझे मिला मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, तो मुझे अच्छा लगा ये, क्योंकि हालांकि हम एक ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम अपने रिलीजन को भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात जहन में नहीं आई थी। तो अब आगे चलें। जी इसमें जरूर। इसमें मेरा ख्याल है कि शायद मुझे इसमें सोबिया करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो है मुसलमान का रोल, ये इंडिविजुअल के अंदर ही नहीं आ जाना चाहिए एज अ जी एज अ सर, ये ह्यूमन बीइंग। इम्पोर्टेंट है। फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ऐसे देखा कि जाए। ये आपके बिलीफ स्ट्रक्चर है, आपका एक खुदा से ताल्लुक है। सर, दिस एक इज अच्छा अबाउट। मुसलमान, एक मुसलमान
जी प्लीज प्लीज गो अहेड। मैं कह रही थी कि एक मुसलमान तो हम बन गए, वो असाइंड में आ गया ना, लेकिन एक राइट। फिर अच्छा मुसलमान वो फिर शायद एस्पायरगा, बेहतर मुसलमान और बेहतरीन मुसलमान एस्पायर्ड में आ जाएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब कुछ और था जी। यानी वो ठीक है। जी। आई थिंक दैट शुड ऑलवेज बी एन एस्पायर्ड गोल। यानी जब व्हेन वी से दैट वी आर इंडिविजुअल्स, तो वो उस इंडिविजुअल में हमारी जो मिसाल के तौर पर फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, मॉरल हेल्थ है, ये सारी चीजें हमारी आएंगी उसमें, कि हमें उसकी उसकी आबियारी भी करनी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ये जो एस्पेक्ट है, ये क्या इंडिविजुअल के अंदर आपका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, सो टू से, मैं स्पिरिचुअल को बहुत वेग चीज समझता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि स्पिरिचुअल का क्या मतलब है। मैं उसके लिए मॉरल यूज करता हूँ ज्यादा। लेकिन ये जो रिलीजियस आपकी जो भी जिंदगी है, मतलब मैं वक्त पे उठा करूं, नमाज पढ़ा करूं, या अपनी जिंदगी को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करूं, ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं हो रहा सब कुछ, आपके ख्याल में? नहीं नहीं यानी पर कैसे ये इंडिविजुअल हो रहा है, क्योंकि ये रोल तो आपका दूसरे भी देख रहे होते हैं ना। मतलब फर्क करें, आप एक हमारी दादी हैं। आइडेंटिटी है। हाँ, जी जी, बिल्कुल दादी है, बिल्कुल। माँ है, तो आपके बच्चे देख रहे हैं आपको कि आप ऐसा कर रही हैं। तो ये राइट राइट। इफेक्ट करता है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं जब मुझे अपनी, अगर, जी जी प्लीज गो अहेड। बोले सर आप प्लीज। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब मैं मिसाल के तौर पर इफ आई गो फॉर अ रेगुलर वॉक, फॉर इंस्टेंस, ठीक तो ठीक। वो मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी, मकसद हेल्थ है। इसके ठीक नतीजे में बच्चे देखकर हो सकता है वो भी मेरे साथ वॉक करने निकल पड़े। वो, मैं उनके लिए रोल मॉडल हूँ, ये एक अलग चीज है। मैं बाप हूँ, इस हैसियत से रोल मॉडल भी हूँ। मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ता हूँ, ये मेरा खुदा के साथ ताल्लुक है, मेरा जाती। ठीक है जी। इसके नतीजे में कुछ और लोग भी, कुछ हमसाए भी, कुछ हो सकते हैं दूसरे लोग भी उसको देख के पसंद करें या ना पसंद करें। मे बी दैट इज, ये एक उसका साइड बेनिफिट कह लें, हो सकता है। लेकिन असल मकसद तो मेरा जाती ताल्लुक है ना जी, खुदा से। आप मतलब, मैं जो चीज नहीं अभी शायद समझ पा रहा, वो ये कि आप इसको, मुस्लिम के रोल को इंडिविजुअल के रोल से अलग कैसे करेंगे? चलिए आप ही बताएं। जी नहीं 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 नहीं, ये इसका कोई हाँ, ताल्लुक, इसमें देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। ये तो आपकी वो देखने का अंदाज है ना जी, पर्सपेक्टिव है। इससे तो मैं खुद सीखूंगा इंशाल्लाह। सर मैंने इट्स तो अबाउट बता हाउ दिया यू कि लुक एट इट। एज ए मुस्लिम जो है वो, अगर एक आपका मुझे पर्सनल तो रूल है लगता तो है फिर अलग ही मेंशन करना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी। ताहिरा, आई गेस बात करना चाह रही हैं, या नहीं, सलमा मैं बात करना मैं चाह बात मैं बात कर चुकी हूँ जी। मतलब आगे जी। चलते हैं। ठीक सोबिया, है जी। मैंने जो रोल लिखे थे वही जो असाइन हुए वो तो सारे के सारे लिख लिए ना। लेकिन उसके ठीक साथ है। फिर एक मेरा बॉस का रोल भी रहा है। फिर यानी अगर मैं इसको तरतीब दूं तो इस तरह होगा कि डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, बॉस, यानी हेड ऑफ स्कूल, वाइफ, फिर मदर, फिर उसके बाद कुलीग, फिर सबऑर्डिनेट भी रही हूँ कुछ अर्सा, फिर मदर इन लॉ, फिर स्टूडेंट, सिटीजन और फ्रेंड। ये सारे रोल मेरे जो थे वो मुझे असाइन हुए, जो मैंने लिखे। उसके बाद जो है वो मैं आई हूँ एक्टिंग रोल पे। तो जो इस वक्त कर रही हूँ एक, वाइफ, मदर। जी सलमा, एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ा सा वो असाइन रोल में ऐड करना चाहूंगी। यानी जिस तरह आपके रोल्स आपको मिले और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं नए से नए रोल्स के अंदर, तो आप इसको मैं ऐसे, मेरा ख्याल है कि ऐसे रोल्स को आप उसमें कम भी कर सकती हैं। यानी आप शुमार रोल्स के अंदर रही हो, तो वो इस आगे वक्त जाके इसको, कब हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन एक्टिंग असाइंड रोल। रोल्स के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करने के लिए
आप इस तरह हम्म। से देख लें कि अब कौन से, यानी शुरू से लेके आखिर तक वो कौन से रोल हैं जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक वो यू। खत्म नहीं हुए, यानी वो आपको मिले, हम्म। आप उनमें रही और वो अभी तक आपके साथ हैं। ठीक है। जी तो उसमें जो है वो, सो भी ये आप किस उसमें मेंशन कर रही हैं जो आपने अभी कहा कि जो रोल्स शुरू से थे और असाइन अभी तक आपके साथ हैं, उसको क्या असाइन आप रोल। बता? नहीं, वो असाइंड असाइन। में तो आ गए ना तायरा, सारे, हर किस्म के, चाहे हाँ, नहीं है। अब अभी जब आप कह रही थी कि कुछ रोल्स आपके शुरू से थे और अभी तक हैं, मसलन कुछ लोगों के लिए डॉटर का रोल अभी तक है, और जैसे जी मेरा नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो आपने बिल्कुल ये ठीक किस है। लिहाज से मेंशन, जो हमारे थे शुरू से और अभी तक हैं? जी जी, मैंने ये इसी लिहाज से ही अर्ज की है कि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी जी अनफॉर्चुनेटली आपका डॉटर का रोल खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, तो अब आप कोई और रोल आ जी, गया होगा आपकी लाइफ में। सिस्टर का है ठीक है, मसलन। ठीक है, सिस्टम रोल में आप हैं, तो ये रोल अभी तक ये आपके साथ रहेगा, मतलब इंशाल्लाह। तो जो भी इंशाल्लाह। रोल्स है, मैं ये कह रही थी कि एक लंबी लिस्ट के बजाय कि कितने रोल्स मेरी जिंदगी में आए और वो चल जाते गए और कम होते गए और फिर नए आते गए, तो थोड़ा सा इसमें रोल्स को की एक लिस्ट, बहुत क्लियर लिस्ट बनाने के लिए, मतलब हम ऐसे रोल्स देख सकते हैं जो कि अब की लाइफ में देख लें कि अब आप उनमें से ये निकल नहीं करंटली है। सकती, वो पास हैं, हम्म। वो आपको मिल चुके हैं, और इन एनी केस यू यू हैव टू परफॉर्म इन दोज रोल्स। तो हम्म। इससे ये होगा कि वो जो माजी में बहुत सारे रोल खत्म हो गए वो निकल जाएंगे, अब तो इसको हम इन ऐसा रोल्स के करें ऊपर ना। हम बहुत ज्यादा गौर कर सकेंगे। सॉरी, मैं ये कहना नहीं, चाह रही दिस हूँ विल बी, विल दिस बी अनदर लिस्ट? नहीं नहीं। कि एस्पायर रोल में आ जाते हैं ना हम, फिर ये सारे रोल तो हमने मेंशन करके अब हम एस्पायर्ड में जो है ना उसकी शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं कि सपोज मैंने लिखा है कि मैं एक अच्छी सास बनना चाहती हूँ, जिससे मेरे पूरे घर का माहौल जो है वो क्रिएट होगा और उसका बहुत असर होगा मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पर। तो ये चीज हो गई। दूसरा, मैं एज ए मेंटर, यानी कि मैं एक छोटा ग्रुप चला रही हूँ, एक रिलीजन ग्रुप चला रही हूँ, उसमें मैं एज ए टीचर जो है वो कैसा रोल प्ले कर रही हूँ, या और उसको कैसे बेहतर करूंगी, और वो अच्छा है या नहीं है, ये तो दूसरे ही बता सकते हैं। फिर मैं एक मेरा, जी बोले अगर सर। इजाज़त दीजिए, मेरा ख्याल है कि शायद जो सोबिया फरमा रही हैं वो ये कि फॉर इंस्टेंस बजाय इसके कि मैं ये लिखूं कि मेरी शुरू से आज तक कितने रोल्स रहे हैं, मैं सिर्फ आज के हवाले से लिखूं, हाँ, वो इससे सारे ये हो हो जाएगा सकते हैं कि जो आप फरमा रही हो। जी जी बिल्कुल। तो फिर यही है कि एक्सपायर रूल में हम दो या तीन जो है वो उसको फोकस कर लें। नहीं, जी सोबिया, एस्पायर की जा रही आप, है मोहित साहब के कहने से कि वो हम असाइंड में वो लिखेंगे रोल्स जो जी जी, नहीं, एग्जैक्टली, जो जो करंटली हैं, मिसाल के तौर करंट पर में आई विल है। नॉट राइट सन। ठीक है जी, आई विल नॉट राइट सन बिकॉज आई एम नो लॉन्गर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सन। ठीक है ठीक है जी, यही मुझे जी, समझ कर यानी आपकी बात। हाँ राइट, जी। यानी हमने इस वक्त के लिहाज से लिखने हैं, चाहे वो असाइंड हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे एस्पायर्ड हो, एस्पायर्ड भी आज मैं क्या क्या एस्पायर कर रहा हूँ उसको लिखना है। ठीक है ना जी। मे बी कल को एक नया रोल वजूद में आ जाए, या हो सकता है हाँ कि मैं जी, कोई ऐसी चीज आज। सीखूं कि जिसके नतीजे में मैं चाहूं कि मैं लोगों तक ये पहुंचाऊं, एक नया रोल वजूद में आ जाए उसके नतीजे में। बट वट एवर एग्जिस्ट टुडे, इस पे फोकस जी करते। बिल्कुल बिल्कुल, और इसे जी। सोचने में भी आसानी हो जाएगी और आपको ऑर्गेनाइज करने में भी बेहतर, मेरा ख्याल है ये लिस्ट आपके सामने रहेगी। राइट। नुशाबा कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, यहाँ पीछे मैं उनके एस्पायर्ड रूल्स के हवाले से आप कह रही थी, तो वो एस्पायर्ड रूल अगर आप मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर कम करना चाह रही हैं तो आप बेशक उनके ऊपर भी फोकस कर लें। मेरा ख्याल है कि एक्टिविटी का पर्पज उससे भी पूरा हो जाएगा, चाहे वो 3 बनते हैं जैसे आपने ग्रैंड मदर की तरफ फरमाया, और अगर वो ज्यादा किसी की जिंदगी में आ रहे हैं तो भी ठीक है। ज्यादा किसी के एस्पायर्ड रोल्स बन रहे हैं और कोई इनको कम करना चाह रहा है, मेरा ख्याल है कि दोनों दोनों तरह से
ये हम्म, पार्टिसिपेंट के लिए अच्छा ही रहेगा। हम यूं मैनेजेबल। अपनी जिंदगी, हाँ जी, हम बेहतर तरीके से इनके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, चाहे वो कम होते हैं तब भी और ज्यादा अगर होते हैं तो भी। और पर्सनल फिटनेस जो जी है वो, पर्सनल फिटनेस जो है वो नहीं आएगा इस रोल में, एस्पायर रोल में नहीं आएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आ सकता बिल्कुल है। आएगा जी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल का रोल है ना जी, वो हाँ हाँ। आपने इस लिहाज से देखना है कि आपका मेंटल, आपकी फिजिकल, आपकी मॉरल और आपकी इमोशनल वेल बीइंग, क्योंकि जब तक कि आप यू आर द बेसिक सेंटर, अपनी जिंदगी का सेंटर असल में आप हैं। ठीक है जी। बाकी सारे, मिसाल के तौर पर, यू कैन नॉट बी अ गुड एक्टिव मदर विदाउट बीइंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मॉरली फिट। बिल्कुल। ठीक है ना जी। जी मैं जी। इस लिहाज से, क्योंकि मॉरली फिट होना भी जरूरी था, तो मैंने जो अभी गुजारिश की थी कि मुझे लगता है कि रिलीजन भी इसी में बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल चाहे वो आपका मुस्लिम है या कोई भी रिलीजन है, वो तो असल में बिल्कुल। यानी होना ठीक है तो सर, मेरी समझ चॉइस गए। चाहिए ना जी। जी सर, बिल्कुल। और जी नौशबा, आपका हाथ रेज है। जी जी जी, एनीबडी? जी नौशबा, सर, आप कुछ आप फरमाना चाहेंगे? जो भी, जी सर, अभी आपने एस्पायर्ड रोल में कहा है कि जो भी रोल हो, जो मुझे समझ आई थी सोबिया की बात, वो ये थी कि जो हम बनना चाहते हैं या फ्यूचर में जी जी वैसा रोल प्ले करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा जी जी। मजीद एक्सप्लेन कर देंगे, मैं कुछ कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझी थी। मैं जो चीज गुजारिश कर रहा था वो ये है कि ये तो तीनों कॉलम्स है ना जी, असाइंड, एक्टिंग और एस्पायर्ड, ये आज के लिहाज से हैं। आज का मतलब है कि असाइंड रोल्स आपके जी नजदीक जी, आज क्या क्या है, ठीक। ठीक एक्टिंग है। रोल्स में आप किस में टाइम दे रही हैं, आज आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो रोल्स। एस्पायर्ड ठीक। होने का मतलब ओ ये है कि आप आज एस्पायर कर रही हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रही। ओ अच्छा, ठीक है, समझ आ गई, यानी कि हाँ जी। आज के मोमेंट में रह के वो करना है आपने। जी हाँ जी 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 आज। जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। ये जी मुझसे। जी, मैं एक्सपायर्ड में कुछ कह सकती हूँ। जी 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 अब ये बहुत सारे लोग तो बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ना। अब मैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ। मुझे लगता है कि मुझे हर रोल जो है, जो मैं इस वक्त परफॉर्म, मैं उसमें बेहतर बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा राइट। इस वक्त कोई भी रोल जो है जो मैं प्ले कर रही हूँ, मतलब एक अटेंशन होती है ना उस बात पे। वैसे तो अदरवाइज भी मैं राइट। सोचती हूँ इस बात को, लेकिन जैसे, मतलब I would definitely like the more understanding sister, a good हम्म housekeeper, and हम्म अभी आप लोगों से वाकई में मैं सोच के कि I have always wanted to be a role model also. और हम्म। देखें, I want to be somebody more in charge, in control, acting more on my values and principles. मेरे बहुत सारे हैं, राइट और मैं राइट। एक्ट कर भी रही होती हूँ, बट कहीं कहीं मुझे लगता है कि नहीं, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड हम्म हम्म। that I have ये set जो है for ना जी, myself. होती हैं वेरी गलतियां हर इंपॉर्टेंट वक्त। पॉइंट। मेरा, जी जी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट गई ने- थी, मुझे लगा शायद बात पूरी हो। आप पूरी कर जी लीजिए जी प्लीज जी बात। जी जी, बताइए बताइए सर। ये जो है ना जी, दो चीजें हैं। एक है क्वालिटेटिवली, मिसाल के तौर पर, आई एम अ फादर, दिस इज एन असाइंड रोल। ठीक है जी। आई एस्पायर टू बी अ गुड फादर, अ बेटर फादर, और द बेस्ट फादर आई कैन बी। दिस, ये वो चीज है कि जिसमें कि हमने क्वालिटेटिवली अपने आप को इम्प्रूव करना है। अभी ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी। अभी सिर्फ ये है कि मैं अपने इन रोल्स को रिकग्नाइज कर लूं। ठीक है जी। वो जी जो रोल्स मेरे, मैं अनकॉन्शियसली मैं जानता हूं, लेकिन कॉन्शियसली मैं, मे बी when my son needs time from me, I might not be available to him. तो ये जो चीज है, ये क्वालिटेटिवली बेहतर करना है। मैं रिकग्नाइज कर रहा हूं जी कि मैं बाप हूं। ठीक है जी। अभी एस्पायर्ड रोल्स का मतलब क्वालिटेटिवली बेहतर करना नहीं है। वो अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है जी। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट दिस मोमेंट इज फाइनलाइज अ लिस्ट नहीं, वेयर बेहतर वी नहीं है। वांट टू परफॉर्म। जी जी सर, ठीक है, समझ गए हम ये बात कि इस नहीं वक्त सर, हमने जो है वो दो से सर मैं तीन। नहीं समझी।
सर मैं नहीं जी जी समझी, मुझे इस पर जी बता जी दीजिए। जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मैं जिस तरह से सोबिया की आपने बात कहा समझा हूँ। बेहतर कर नहीं है। हाँ, यानी बेहतर एक ये है कि मैं रोल रिकग्नाइज करता हूँ दैट आई एम अ ब्रदर। ठीक हाँ है जी। जी। हाँ आई जी। एम नॉट गिविंग सफिशिएंट टाइम टू माई सिबलिंग्स। ठीक है जी। आई वॉन्ट टू बी अ बेटर ब्रदर। ये एक अगली चीज है। जी। ये क्वालिटेटिव, मैंने रोल को रिकग्नाइज कर लिया है, बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग एज पर माई स्टैंडर्ड्स फॉर इंस्टेंस। ये मैंने आगे करना है, मैंने रोल रिकग्नाइज कर लिया है। यहाँ पर जो चीज है वो ये कि अपनी कॉन्शियस में ले आए कि रोल आपके नजदीक इम्पोर्टेंट क्या क्या है। अब उनको किस तरफ लेके जाना है वो हम आगे करेंगे। वो विजन है हमारा जो हमने तो इस्टेब्लिश करना है। तो मसलन हम लिखेंगे क्या? आपने अभी जैसे मैंने अभी बात की है आपने जी। ताहिरा, तो हम ऐसा आपने, लिखेंगे। सिबलिंग्स के लिहाज से, तो आप क्या लिख, मैं जी, मतलब इस तरह आ, लिख रही, आप क्या आपने लिखेंगे? असाइंड रोल्स में लिखा आपने एज सिस्टर। हाँ ठीक जी। है जी। हाँ अच्छा, जी। आपने इसके बाद आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। अस्पायर्ड रोल आपका सिस्टर नहीं है। नॉट बीइंग अ बेटर सिस्टर। ठीक है जी। दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू डिटरमिन हाउ टू बी अ बेटर सिस्टर। ठीक है नहीं जी। सॉरी, आप अभी जो चीज है, मेरी वो, जी सॉरी, मेरा वो वाईफाई का मसला है। आई एम सो सॉरी सर, जरा रिपीट करेंगे? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, सिस्टर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ के कि लिहाज से आपने जब, एस्पायर्ड लिखेंगे। हाँ, क्वालिटेटिवली बेहतर करने का मसला नहीं है। अभी एक रोल है, मिसाल के तौर पर आई एम इग्नोरिंग, फॉर इंस्टेंस जब अभी ये सारी बात हो रही थी ना, तो अभी किसी ने, आप में से ही किसी ने कहा, प्रोबेबली सिद्दीका ने जब ये फरमाया दैट आई एम अ नेबर, तो आई हैड मिस्ड द रोल ऑफ अ नेबर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। आई हैड जी। मिस्ड आउट द रोल ऑफ अ नेबर। I am actually not doing anything about it. So this is one of my aspired roles. I want to become an effective, contributing आप neighbor to आप my community. आप लिखेंगे, आप सिर्फ नेबर लिखेंगे एस्पायर्ड जी में? जी, neighbor. Right, अच्छा। right. अच्छा अच्छा। I want to ठीक है, be I've a got good it। neighbor, right? अच्छा, जी। ये वो चीजें कि पता क्या चलेगा इससे, कि एक है जिनकी रिकग्निशन है मेरे अंदर कि ये खुदा की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से या मेरी मेरी पोजीशन की वजह से असाइन हो गए हैं मुझे रोल्स। दूसरा ये कि मैं टाइम किस में ज्यादा दे रहा हूँ, वो रोल्स हैं जो एक्टिंग, जिसमें मैं, दोज रोल्स इन विच आई एम परफॉर्मिंग, आई एम स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम। और तीसरे वो जी कैटेगरी बिल्कुल। के जो, इसमें तो विच हम आई विश आई वुड ऑल्सो परफॉर्म। तो अब मैं मुस्लिम लिख सकती हूँ ना फिर इसमें, जी जी, वो तो एस्पायर्ड बिल्कुल में? लिख सकती हैं, बिल्कुल लिख क्योंकि वो, सकती हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। जी। मैं अच्छा जी। खाली मैं हाउस कीपर लिखूंगी। जी। राइट, राइट, राइट। सर टाइम एक तो हो गया है, और जी ठीक है। मैं बस, ठीक है, तो और हम दूसरा इसको ये, आप वाइंड अप कर लें अब। हाँ जी अगला सर। बता दीजिए कि हम इधर से शुरू करके, जो लोगों ने ये लिस्ट बनाई है जी, ये अपने पास प्लीज महफूज रखें, क्योंकि इस पर आगे काम होना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं इसको बस वन लाइनर इसको आखिर में कंक्लूड दोबारा थोड़ा सा करना चाहूंगी कि आपके जी। असाइंड रोल्स, एक्टिंग रोल और एस्पायर्ड रोल्स तीनों के अंदर जो भी लिख रहे हैं, जो भी आप रोल्स लिख रहे हैं, वो हम्म, हमारे हमारे कॉन्शियस में होने चाहिए। हमें अच्छे से पता हम्म, होना चाहिए कि मुझे असाइंड रोल्स मेरे क्या हैं, वो कहाँ से मेरे पास आए हैं, मैं आजकल ज्यादा एफर्ट, एनर्जी, टाइम किस में ज्यादा लगा रही हूँ। यानी बाजू का ऐसा हो जाता है लाइफ में कि हम जिन रोल्स में ज्यादा एक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे एस्पायर्ड हम्म। रोल्स नहीं होते, और बाजू का राइट। वो असाइंड रोल्स भी नहीं होते। तो अगर ये बात हमारे ओके। कॉन्शियस में आ जाए तो हम लोग अवेयर होंगे कि हमने एक्चुअली कौन सी चीज निकालनी है, किस चीज पे काम करना है। बिल्कुल इसी तरह जब हम्म। एस्पायर्ड रोल्स में भी आप जो मर्जी है लिखें, लेकिन अपने कॉन्शियस में ला के उन रोल्स को ऐड कीजिए, सो दैट, क्योंकि एस्पायर्ड रोल्स एक्चुअली हमारी लाइफ को शेप करेंगे। तो अब हमने ओके उनके ऊपर, जी, जी। मैं उनके ऊपर, इसमें आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जी। दिस इज, ये इसने आपकी इस बात में कुछ क्लियर कर दिया। मैंने अभी जो कहा था कि मेरा एक रोल जो मैं मिस कर रहा था वो नेबर का रोल था। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो नेबर का रोल है, ये मुझे एस्पायर्ड में नहीं लिखना, ये मुझे असाइंड में ही लिखना है।
बिल्कुल ऐसे ही है जी। राइट राइट क्यों? राइट, एस्पायर्ड मेरी चॉइस पर है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि राइट, एस्पायर ओके। अब क्योंकि बहुत सारे रोल्स में आप एस्पायर, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे तो शायद हम फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई उसको लाना चाहता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम ये आपको राइट राइट। ये हमें पता होना चाहिए कि ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ या मैं उसको लेके आ हम्म रहा ठीक है, ठीक है जी। हूँ। तो तो सोबिया मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर। पूछना चाहती हूँ, सॉरी सोबिया, वन लास्ट क्वेश्चन, कि फिर जी जी। एस्पायर में मैं मोई साहब से और आपसे दोबारा पूछना चाह रही हूँ कि अब बेटर मदर क्यों नहीं आ सकता नहीं, एस्पायर में? बिल्कुल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, अच्छा बिल्कुल आ बिल्कुल, सकता है। ओके ओके। जी, अ मोर अंडरस्टैंडिंग सिस्टर फिर आ सकता है ना? ये सब रोल्स राइट हैं राइट, तो सही, बट मैं उनको परफॉर्म नहीं करी टू दैट लेवल, देखिए ठीक। फिर मैं ये लिख ये तो सकती हूँ ना? टोटली आपकी चॉइस है, मेरे ख्याल में ये टोटली नहीं, आपकी चॉइस है। मैं पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में ये हो सकता है ना? एस्पायर्ड में आएगा ना यही रोल्स मैं कर तो रही हूँ, बट उसको इससे बेहतर अच्छा देखिए, करना मैं चाहती थोड़े हूँ, मैं लग थोड़े रहा से है कि लैकिंग है चीजें। देखिए, मदर का रोल असाइन रोल में भी आ गया, और हाँ हो जी, सकता है आप इसमें परफॉर्म भी करी हो। ठीक है, आप दिन हाँ में जी, 1 घंटा एज अ मदर बच्चों के साथ टाइम फॉर एग्जाम्पल गुजारती हूँ। अब आगे जाके पता चलता है कि आपको जी, अपनी लाइफ में कुछ कमी महसूस हो रही है, या आप इस वक्त कुछ हालात हम्म, को देख के ये महसूस करती हैं कि मेरा अगर अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो मैं इनको एक अच्छा फॉर एग्जांपल कम्युनिटी मेंबर बनाने में कामयाब हो सकती हूँ, और मुझे लगेगा कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे सकती हूँ मैं इस जगह पर आकर। तो वहां पर आप अपने ठीक है, एस्पायर्ड रोल में अब मदर का रोल भी ऐड कर लेंगी। वो असाइंड भी है, उसमें आप एक्ट भी ओके, कर रही हैं, लेकिन वो एस्पायर्ड ठीक है। रोल में भी आ ठीक है, सकता है, बिकॉज सही, आपको ये सही, लग रहा है गॉट कि इट। मुझे अब यानी आपका विजन है ना, मे बी आप मदर के हाँ जरिए जी, अपना विजन, इस रोल में आके अपने विजन को ज्यादा अच्छा ब्रॉडर करना चाहें और अच्छा करना चाहें, और आपको लगे कि यहाँ से मुझे राइट, तकमील मिलेगी अपनी जात। ठीक है जी, ठीक है, ये फिर मैं गलत जी, समझा था जी जी। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट नाउ ठीक है जी। अंडरस्टूड। थैंक यू ठीक है सो जी, फिर मच हम इधर से शुरू करते हैं जी, सोबिया इंशाल्लाह एंड वी विल सर, स्टार्ट फ्रॉम थैंक हियर। यू थैंक यू वेरी मच जी, एवरीबडी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को अभी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो अगले हफ्ते इसी टाइम पे जी। बहुत शुक्रिया जी सोबिया आपका, जज़ाकल्लाह।